Hello, good morning all. Good morning all of you. How are you today? So we have reached to the end of the session. That means end of this week. Okay. And yesterday we have started with the Booth's algorithm and we have solved one or two examples into it. Okay. Yes, very good afternoon, Suraj. Sorry, good morning, Suraj. Okay. So today we will be learning out the Booth's algorithm. Okay. When we will be considering one positive number when multiplied with, okay, one positive number when multiplied with one negative number, or if first number is negative multiplied by if second number is positive, the product will be always a negative number. Okay, so we will be learning this kind of example today. Okay, so always remember, whether this number 1 is positive multiplied by number 2 is negative, then product is negative. Okay? Or if the first number is negative multiplied by if number 2 is positive, even though the product is negative number. Okay? So let's take down the example for it. Take down the example, take down the statement. Multiply. Take down the statement. Multiply -7, okay, and +3, okay, multiply -7 and +3 with register bits equal to 5, okay, with register bits equal to 5. Chalo, let's solve this example. Okay, so here multiplicand is -7, multiplier is +3. Okay, now here the question is how to represent the -7 into 5 bits. Okay, I don't know, probably. Okay, I don't know that. Then how I will proceed? What I will do? I will take +7 क्योंकि मुझे +7 represent करना आता है. So I will take +7 as 0, 0, 1, 1, 1. So this is the 5-bit representation of +7. Okay? 5-bit representation of +7. Find out its 2's complement. Then this +7 number will become -7. Okay? So 1, 1, 0, 0, 0 plus 1. So the answer is 1, 0, 0, 1, 1. Okay. So the -7 can be represented in 5 bits as 1, 1, 0, 0, 1 to the base 2. Am I correct? Okay. This is the first step. Okay. This is the step number 1. Step number 2 is represent +3 into 5 bits. 0, 0, 0, 1, 1 to the base 2. ठीक है. Now मुझे पता है कि जब मैं एल्गोरिथम को फॉलो करती हूँ तो अगर मेरा ऑपरेशन यानी मेरा Q0 एंड Q ऑफ -1 ये जो 2 बिट है अगर वो 0, 1 आए या फिर 1, 0 आए तो मुझे इधर AC इज इक्वल टू AC प्लस M करना है या फिर AC इज इक्वल टू AC प्लस ऑफ -M करना है. तो
इस दोनों सीरत में मुझे माइनस एम फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैंने ये 11001 इस नंबर का माइनस एम मुझे करना है, तो वेदर आई विल गेट द +7, minus m will be +7. So +7 is equal to 0 0 1 1 1 to the base 2. Am I correct? Am I correct? समझ में आ रहा है सबको? All of you यहाँ तक समझ में आ गई? Okay. चलो, yes. Now what we will do? We will start with the summation. So this is the AC, then this is the Q, this is Q of -1, and this is the operation what I am performing. चलो, सबसे पहले AC को हमें क्या करना है, 5 बिट में 0 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है? सो इनिशियलाइज विथ 5 बिट्स ऑफ 0. Q क्या है हमारा, 0 0 0 1 1. ये मेरा हो गया Q. Q ऑफ -1 क्या होगा सबसे पहले, 0, ठीक है? ये मैंने पहले मेरा ऑपरेशन यहाँ पे अभी शुरू करना है मुझे. तो इट इज Q0 is 1 and Q of -1 is 0. तो which operation I am performing first? क्या मुझे परफॉर्म करना है यहाँ पे, बताओ. देखो फ्लो चार्ट, अगर Q0 1 है और Q of -1 0 है, यानी 1 0 है, तो 1 0 में मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, AC minus M. Yes, AC minus M. Correct. So AC is equal to AC plus of minus M. चलो परफॉर्म करो. AC के कंटेंट्स क्या है, 0 0 0 0. What is minus M? +7. 0 0 1 1 1. तो मेरा आउटपुट क्या आया, 0 0 1 1 1. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. अभी ये फर्स्ट स्टेप होने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट. जब मैं अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करूंगी तो मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी साइकिल 1 मेरी कंप्लीट हो जाएगी. इससे पहले आपको क्या करना है, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट से पहले ये एसी के कंटेंट्स आपको यहाँ पे अपडेटेड कंटेंट्स लिखने हैं. तो अपडेटेड कंटेंट्स है 0 0 1 1 1, ये है 0 0 1 1, ये है 0. चलो फिर अभी इसका करते हैं अरिथमेटिक राइट शिफ्ट. तो ये 1 मेरा आ गया यहाँ पे, ये 1 आ गया यहाँ पे, ये 0 आ गया यहाँ पे, 0 0 1, फिर 1 1 0 0 एंड 0. करेक्ट है? ये हो गया मेरा साइकिल 1 कंप्लीट. तो अभी मेरा साइकिल 2 चालू होगा. साइकिल 2 के लिए मुझे फिर से ये Q0 एंड Q ऑफ -1 मुझे चेक करना है. तो अभी ये है 1 1. तो अगर है 1 1 तो साइकिल 2 क्या होगी, सिर्फ अरिथमेटिक राइट शिफ्ट होगा, है कि नहीं? इट विल बी ओनली अरिथमेटिक राइट शिफ्ट. चलो आगे परफॉर्म करोगे आप, ट्राई करोगे आंसर के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर अगर आपका रजिस्टर बिट 5 है तो आपके कितने साइकिल परफॉर्म होंगे, यस करेक्ट, आपके 5 साइकिल्स परफॉर्म होंगे. तो अभी मैंने साइकिल 1 कंप्लीट कर लिया है. यस वेरी गुड, आई एम गेटिंग ऑल गुड रिस्पॉन्सेस. सो साइकिल 1 कंप्लीट हो गया. चलो अभी साइकिल 2 कंप्लीट करते हैं. करो साइकिल 2 करो. I will be giving you 5 minutes to solve it.
I hope all of you are doing your sum. Okay, I expect the answers from you people. फिफ्थ साइकिल होने के बाद आप मुझे एसी और क्यू के कंटेंट्स बताने वाले हैं, ठीक है? साइकिल 2 कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू? ये आपका कौन सा साइकिल है नील? कौन सी साइकिल के बाद आपका आंसर आता है? साइकिल 2। ओके ओके ओके, चलो लेट्स गो फॉर साइकिल 3 नाउ। केयरफुली परफॉर्म करो, ठीक है? जब भी आप AC प्लस माइनस एम या फिर AC प्लस एम करोगे, उसके बाद में अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना भूलना नहीं, ठीक है? और अगर आपका Q0 एंड Q ऑफ -1 बिट अगर आपका 1 1 और 0 0 है, तभी आपको सिर्फ अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है, ठीक है? चलो फास्ट फास्ट परफॉर्म करो, आज हमें डिवीजन स्टार्ट करना है। चलो साइकिल 3 completed. What about others? I have not get any replied from others. साइकिल 2 हो गया कि नहीं बाकी लोगों का? साइकिल 2, रजनीश, सोहम, वैदेही, निकिता, मानसी, आप लोगों को आंसर मिला कि नहीं? बाकी भी मैं सबको पूछ रही हूँ। आई होप यू पीपल आर डूइंग इट। हमें डिवीजन चालू करना है आज, इसके वजह से अभी आप जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है? साइकिल 3, साइकिल 4, साइकिल 5 इतना टाइम नहीं लगता है। साइकिल 4 और 5 आंसर आ गया आपका? कम ऑन, चलो टेल मी वेदर यू आर गेटिंग द आंसर। चलो बच्चों, वेर आर यू? आर यू देयर? आर यू सॉल्विंग? Okay, Mansi has got the correct answer for AC. And what about Q010111? Yes, correct. But अभी ये जो आपका आंसर आया है AC और Q का,
ठीक है, ये आंसर तो आपका -7 इंटू 3 करेंगे तो -21 तो नहीं है आपका आंसर। Am I correct? Yes, it's not -21। तो यही तो एक ट्विस्ट है हमारे प्रॉब्लम में। तो अभी ये जो कंटेंट्स है AC और M के, तो आपके AC के कंटेंट्स है 1 1 1 1, ठीक है, एंड Q के कंटेंट्स है 0 1 0 1 1, ठीक है। यस, तो अभी इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करो। यस गणेश, यू आर वेरी करेक्ट। चलो करो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। 1 0 1 0 0 एंड 1 +1 करेंगे तो ये आएगा 1 0 1 0 1। ये आ गया, देखो आपका आंसर, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है हमने, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये -21 or to the base 10। So this is your answer. Okay, this is your answer। जब आप स्टेज 5 पे पहुंच जाएंगे, साइकिल 5 पे पहुंच जाएंगे एंड यू विल फाइंड AC के एंड Q के कंटेंट्स डजंट सेटिस्फाई। ये सब कब होगा? जब आपका एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव होगा, या फिर एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव होगा, तभी ये स्टेज आएगी कि आपको AC और Q का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। You may please remember these things. Yes. What about others? 51 बच्चे हैं क्लास में, सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर करते हैं। What about others? कुछ आंसर आया नहीं आया? Yes रजनीश, you have got the correct answer। अभी इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो। What about others? आंसर आ रहा है बच्चों? आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके वैदेही, यस सारा, ओके, वेरी गुड। यस, ऐसे रिप्लाई आएंगे ना तो और भी अच्छा होगा हमारा क्लास। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस। आई एम लविंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपसे मुझे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, अच्छे रिप्लाईज मिलते हैं, तो इवन आई एम गेटिंग चार्ज, आई एम गेटिंग बूस्ट अप टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स एंड टू टेक मोर इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी हो ना तो सब अच्छा होता है। तो दैट इज व्हाई आई एम रियली लविंग योर क्लास, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ वन मोर चैलेंज, ओके, वन मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन। अगर आपका एक नंबर निगेटिव है, ठीक है, अगर आपका एक नंबर निगेटिव है और निगेटिव नंबर को अगर मैं निगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो चलो अभी एक और सम सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई -7 इंटू -3 विथ रजिस्टर बिट इक्वल टू 4, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि सेकंड नंबर भी आपका निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे m क्या है आपका -7। -7 का जो रिप्रेजेंटेशन है टूज फॉर्म का, वो हमने लास्ट सम में किया है, लेकिन वो 4 बिट का 5 बिट का है, लेकिन अभी मुझे 4 बिट का चाहिए। तो मैं फिर से +7 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करूंगी, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी एंड यहाँ पे मैं उसका नंबर लिखूंगी, ठीक है। कुछ गलत हो गया शायद मेरा, 1 मिनट। यस, आई हैव डन मिस्टेक ओवर हियर। यस, तो मेरा नंबर आया 1001, ठीक है, 1001 विद द बेस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया -3, ठीक है। -3 का भी रिप्रेजेंटेशन 4 बिट में कैसे करते हैं, चलो
+3 रिप्रेजेंट करो 4 बिट में, तो 0 0 1 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 1 0 0, उसमें 1 ऐड करो तो ये हो गया 1 1 0 1, लिखो 1 1 0 1 टू द बेस 2। ठीक है, ये जो है ना, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये आप यहीं पे कॉर्नर में यहाँ पे एक लाइन कर दीजिए और उधर ही फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका एग्जामिनर होगा, यहाँ पे मैंने जैसे क्यू फाइंड आउट किया है, +3 0 1 1 0 0 1 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया 1 1 0 0 +1, इट बिकम्स 1 1 0 1। ठीक है, अभी ये मैंने m और q तो कर लिया है, लेकिन मुझे -m तो लगता ही है हमेशा। ठीक है, -m तो लगता है, तो अगर मैंने 1 0 0 1 का फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मुझे यही नंबर मिलेगा। एम आई करेक्ट? चलो, ये तो इतना तो मुझे पता है 0 0 1, तो ये टू द बेस 2। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका +7 हो गया। ठीक है ना, ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप है पहले वाले, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद में क्या करेंगे, फिर से ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या अप्रोच? लिखो AC के कंटेंट्स, Q के कंटेंट्स, Q ऑफ -1 के कंटेंट्स, एंड फिर क्या करेंगे, ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशन। AC के कंटेंट्स 4 बिट ऑफ 0, Q ऑफ -1 0, Q क्या है आपका, मेरा Q है 1 1 0 1। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। अभी ऑपरेशन डिसाइड करना है। ये पहला ऑपरेशन है पहला ऑपरेशन है फाइंड आउट Q0 एंड Q ऑफ -1। तो यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे हम लोग, व्हाट वी विल परफॉर्म, क्या परफॉर्म करना है यहाँ पे, what is the operation? Yes, AC plus of minus m. चलो, so AC is equal to AC plus of minus m. तो AC plus of minus m, AC is what, 0 0 0 0 and minus m is 0 1 1 1, है ना। चलो, तो आंसर आ गया 0 1 1 1। ये कंटेंट से आप लिखो 0 1 1 1, ये लिखो 1 1 0 1, ये 0। अभी सेकंड ऑपरेशन क्या करना है, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, है ना। चलो, ये हो गया 1 यहाँ पे, 0 1 1 1 1 1 0 0। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने अरिथमेटिक राइट शिफ्ट किया यहाँ पे। ये हो गया मेरा साइकिल 1 कंप्लीट, है कि नहीं। चलो, अभी रेस्ट साइकिल यू विल परफॉर्म एंड यू विल बी टेलिंग मी वेदर यू आर गेटिंग द +21 आंसर और नॉट। परफॉर्म all of you।
Yes, you are getting positive 21 answer. Okay, you are getting all of you positive 21 answer. Okay. Yes, true. बाकी लोगों को भी आंसर मिल गया? All of you? कितने लोगों को आंसर मिला है? यस सौरभ, करेक्ट, करेक्ट आंसर। अभी आप यहाँ पे देखो, आपका AC और Q के कंटेंट्स अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव 21 है, यानी यहाँ पे आपको टूज कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। यानी इससे क्या साबित होता है कि अगर एक नंबर निगेटिव रहा तो आपका आंसर निगेटिव आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स AC और Q के कंटेंट्स अगर आप चेक करोगे, इन केस ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव नंबर, then at that time you have to compulsorily perform the two's complement। ठीक है। एग्जाम में भी कैसा रहता है, आपको बिट्स दिए हुए होते हैं, M दिया होता है, Q दिया होता है, और आपको रजिस्टर बिट्स दिए होते हैं, और फिर यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है। और एक मल्टीप्लिकेशन का सम करोगे। ओके। और एक बार परफॉर्म कर लिया ना आपने तो समझ लो, और अगर आपका आंसर आ गया तो समझ लो फिर आपको इसके बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। ठीक है। टेक -5 into -6 and register bit is equal to 5। सॉरी। Okay, all of you are performing ना? करतायत ना सगळे? Anybody is getting any difficulty in solving multiplication? Because this is the last sum which we are performing on Booth's algorithm multiplication. After this, we will be moving for the division. Okay, we will be moving for the division.
After division, our unit is ending. Unit number 2 is getting ending up. कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का युनिट नंबर 2 मध्ये बूथ अल्गोरिदम मल्टिप्लिकेशन? Anybody facing any problem? Puru, Abhishek, Amisha, Darsh, Girvani, Harshal, Ishita, Hussein. No problem. Okay. Karthik, Kashif, Atharva, Nikita, Nishay, Pranjal, anybody? I want the reply from everyone. Okay. Okay. So I hope you people are understanding well and doing well. Okay. चलो अभी आप लोग जो आपका पेंडिंग सम है वो आप घर पे सॉल्व कीजिए, ठीक है? आफ्टर द लेक्चर आप उसमें एक पेज आप वहां पे छोड़ दीजिए, उसको आप बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलेगा? ओके चलो हम लोग अभी एक काम करते हैं, इंटीजर डिवीजन का एल्गोरिदम लर्न कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवीजन थोड़ा सा टफ नहीं है बट प्रोसीजर उसका थोड़ा बड़ा है, एल्गोरिदम में थोड़ा प्रोसीजर बड़ा है, इसके वजह से इट इज गोइंग टू टेक सम लिटिल बिट टाइम। तो हम लोग मंडे को फ्रेश मूड में डिवीजन सॉल्व करेंगे, अभी हम उसका सिर्फ एल्गोरिदम लर्न करते हैं, ठीक है? चलो so let us solve the integer division. वैसे भी बचपन से अगर हमें टेबल्स नहीं आते हो तो डिवीजन तो वैसे भी हमें डिफिकल्टी जाता है ना? चलो जोक सपाट अभी यहाँ पे। ओके शाम, ये प्रीवियस आंसर है ना आपका, आ गया क्या आंसर? ओके चलो वेरी गुड, अगर हो गया हो तो दैट्स गुड, जिनका नहीं हुआ है वो लोग आप यस वैसे ही करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड, I really appreciate those who have completed it right now because कल करे सो अब ऐसा एक जो कोई ये है उसको हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे, ओके? आज करे सो कल और कल करे सो कभी नहीं, ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स डू द इंटीजर डिवीजन नाउ, ओके? इंटीजर डिवीजन में अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है? स्टार्ट। चलो ये आप मेरे साथ लिखोगे, ठीक है? स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनिशियलाइजेशन, ठीक है? तो इनिशियलाइजेशन में एसी के कंटेंट्स तो यहाँ पे भी हमें 0 करने हैं, ठीक है? उसके बाद एम जो है वो आपका होगा डिवाइजर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया आपका डिवाइजर, ठीक है? ये हो गया आपका डिविडेंड, ठीक है? तो Q इज इक्वल टू डिविडेंड और काउंट को इनिशियलाइज करेंगे n में, ठीक है? काउंट को इनिशियलाइज करेंगे n में, ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। इसके बाद में कंपल्सरीली मुझे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो पहला ऑपरेशन है शिफ्ट लेफ्ट। क्या क्या शिफ्ट करना है आपको? एसी के कंटेंट्स और क्यू के कंटेंट्स, कंपल्सरीली शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है? और उसके बाद में और एक कंपल्सरी ऑपरेशन करना है और वो है
A इज इक्वल टू यानी AC इज इक्वल टू AC माइनस M, यानी सिंपली वही प्लस ऑफ माइनस M। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिलहाल तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए AC माइनस M लिखते हैं। अभी इसके नीचे जो है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, इसके नीचे जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अभी इसमें मुझे क्या करना है, AC के कंटेंट्स चेक करने हैं। अगर वो मेरे कंटेंट्स लेस देन 0 है, ठीक है, तो उसमें आएगा आइदर यस और आएगा आइदर नो। ठीक है, तो अगर मेरे AC के कंटेंट्स यस है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, Q को 0 से इनिशियलाइज करूंगी और A इज इक्वल टू A प्लस M करूंगी। और अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं Q0 को सिर्फ 1 से इनिशियलाइज करूंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा काउंट होगा, काउंट 1 से डिक्रीज होगा। ठीक है ना, काउंट -1। ठीक है, ये सब चीज आप कब तक परफॉर्म करोगे, सेम काउंट जब तक आपका 0 नहीं हो जाता। अगर वो 0 हो गया तो एंड, और अगर नहीं 0 हुआ तो क्या करोगे, ये काउंट अगर 0 नहीं हुआ तो आप फिर से यहां से परफॉर्म करोगे। ठीक है, मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखिए नीचे का आपको दिख रहा है। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, AC M Q, AC डिवाइजर डिविडेंड काउंट इज इक्वल टू N। सबसे पहला स्टेप होगा शिफ्ट लेफ्ट। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट राइट करते थे, यहाँ पे हमें शिफ्ट लेफ्ट करना है। ठीक है, ये डिफरेंस है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट करना है। शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद कंपल्सरी A माइनस M करना है। ठीक है, फिर चेक द कंटेंट्स ऑफ A। तो यहाँ पे अगर A के कंटेंट्स लेस देन 0 है, अगर है तो Q को 0 से इनिशियलाइज करो और A प्लस M करो, और अगर नहीं है तो Q को सिर्फ 1 से इनिशियलाइज करो और काउंट 1 से डिक्रीज करो। फिर चेक करो काउंट, अगर काउंट आपका 0 है तो आपका ऑपरेशन होगा एंड, और अगर नहीं है तो आपको फिर से साइकिल 2 पे जाना है। अगेन लेफ्ट शिफ्ट, अगेन माइनस, चेक फॉर A के कंटेंट्स। अगर इट इज लेस देन 0 नहीं है तो Q को 1 से इनिशियलाइज करो, और अगर लेस देन 0 है तो Q को 0 से इनिशियलाइज करो, A प्लस M करो, काउंट माइनस करो, ये साइकिल कंप्लीट चलता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द division. Okay, this is called as division operation. Are you getting all of you? Okay, ठीक है, जब हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो, अभी हम क्या करेंगे, हमारा इनिशियल स्टेप सॉल्व करते हैं। एक सम हम लोग सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं, इसको सॉल्व हम नेक्स्ट इसमें करेंगे मंडे को। ठीक है, तो चलो लिखिए, परफॉर्म द डिवीजन। ठीक है, इसमें एक बात बता दूं, इसमें 2 रहते हैं, रिस्टोरिंग डिवीजन रहता है एक, और एक होता है नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन। ठीक है, एक होता है रिस्टोरिंग डिवीजन, एक होता है नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन। तो अभी हम लोग रिस्टोरिंग डिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, और एक बात बतानी है मुझे, जब यहाँ पे आपका ऑपरेशन एंड हो जाता है, ठीक है, तो आपका कोशंट जो रहता है, कोशंट, ठीक है, कोशंट यानी आपका आंसर,
तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, क्वोशंट जो रहता है वो आपको मिलता है क्यू में, ठीक है। और आपके रिमाइंडर जो रहते हैं, ठीक है, जब आप डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर जो रहेगा वो आपको मिलेगा एसी में, ठीक है। ठीक है, ऑल ऑफ यू आप नोट डाउन कीजिए। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे तो उसमें एसी और क्यू के कंटेंट्स को हम लोग कंबाइनली कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे हमें क्यू का कंटेंट जो रहेगा वो हमारा रहेगा एक्चुअल आंसर, उसको हम बोलते हैं क्वोशंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग रिस्टोरिंग डिवीजन लर्न कर रहे हैं ना, तो रिस्टोरिंग डिवीजन में अगर मेरा ये समझ लो 4 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 4, क्वोशंट आया 4, ओके। ये आ गया 16, तो ये आ गया मेरा क्वोशंट, ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर, ये हो गया डिवीजर, डिवाइजर, एंड ये हो गया डिविडेंड, ओके, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक्चुअल सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। परफॉर्म द डिवीजन, राइट डाउन द स्टेटमेंट, परफॉर्म द डिवीजन यूजिंग restoring method और restoring division, ठीक है। and your sum is 17/3, ठीक है। तो आपका डिविडेंड क्या हो गया 17, तो द बेस 10, सॉरी हाँ मैंने पहले शायद गलत लिखा था, डिवाइजर 3, डिवाइजर मैंने 17 लिखा था, 16 लिखा था, सॉरी सॉरी। आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, रॉन्गली कुछ भी लिख लेते हो क्या? जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ बाय डिफॉल्ट मेरे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं ना बच्चों। आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, मैंने करेक्ट लिखा था या रॉन्ग लिखा था, आई डोंट नो। चलो नेवर माइंड। सो डिविडेंड इज 17, डिवाइजर इज 3, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने n इज इक्वल टू 5 कंसिडर करना है, यानी 5 बिट का डिवीजन करना है हमें, ठीक है। क्यों 5 बिट हो गया आपका, क्योंकि आपका 17 का रिप्रेजेंटेशन 5 बिट होगा, एम आई करेक्ट, है ना। 4 बिट में 17 रिप्रेजेंट कर पाओगे क्या, इसलिए हमारा n इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। ओके चलो तो आपका अभी सबसे पहला क्या है, आपका स्टेप 1 क्या है, ये देखिए एसी के कंटेंट्स 0 पे इनिशियलाइज करो, m इज आपका डिवाइजर है, तो मेरा डिवाइजर क्या है 3, ठीक है। तो 3 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया 0 0 0 1 1, ठीक है। अभी इसमें आपको एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है। डिवीजन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, जब अगर आपका रिप्रेजेंटेशन 5 बिट है, ठीक है, तो आप डिवाइजर को 6 बिट कर लो। अगर आपका डिवाइजर 6 बिट है तो आप उसको 7 बिट कर लो, यानी यहाँ पे आपको n+1 बिट कंसिडर करना है डिवाइजर में। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो या फिर कुछ करते हो तो वहां पे बोरो जनरेट होता है, क्योंकि डिवीजन में आप जब सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको बोरो की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, तो बोरो को कंसिडर करने के लिए आपको 1 बिट एक्स्ट्रा कंसिडर करना है यहाँ पे। तो ये जो m इज इक्वल टू +3 है, ठीक है, इसको मुझे 6 बिट में कंसिडर करना है, ठीक है।
तो मेरा m क्या हो गया अभी 6 बिट का 1 2 3 4 5 6 बिट हो गया, ठीक है। ये हो गया m, एम आई करेक्ट? फाइंड आउट इट्स माइनस m नाउ, फाइंड आउट माइनस m, क्योंकि मुझे m माइनस a माइनस m करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे a माइनस m नहीं करेंगे ना हम, यहाँ पे a प्लस ऑफ माइनस m करेंगे, तो मुझे माइनस m लगेगा यहाँ पे। फाइंड आउट माइनस m, टेल मी व्हाट इज माइनस m ओवर हियर। यस करेक्ट, 1 1 1 1 0 1, यस करेक्ट करेक्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इनिशियल स्टेप, ठीक है। ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेप, ठीक है। अभी इसका बाद का जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, ओके, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम ओवर हियर, ठीक है। चलो, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। I hope you understood whatever we have done today in the class, even in the previous lectures. अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टीज नहीं पूछने तो आप मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं, कभी भी पिंग करो। लेट हो सकता है लेकिन डेफिनेटली मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। कुछ बार ऐसा हो जाता है कि काम की वजह से लेट हो जाता है, बट आई एम डेफिनेटली रिप्लाइंग टू द पर्सन हु इज पिंगिंग मी। सो फॉर दैट पर्पज ऐसा मत सोचो कि मैम करेंगे या नहीं पिंग। सो चलो, ओके, सो आई एम डन फ्रॉम माय साइड। नाउ you have to mark your attendance in the chat box, and then you can leave the class. Thank you so much guys for your enthusiastic replies. I'm really overwhelmed, and I hope you are understanding the contents which I'm telling you. Okay, चलो, those who have mark attendance, please do not mark repeatedly. एक बार मार्क किया तो भी मैं अटेंडेंस लगाने वाली हूँ, एक ही अटेंडेंस लगाऊंगी। एक बार करो, 2 बार करो, कुछ लोग 2 3 3 बार अटेंडेंस मार्क करते, पता नहीं श्योरिटी नहीं रहती क्या, एक बार मार्क किया है तो हो जाएगा, है ना। चलो, गुड डे गाइस, टेक केयर एंड बाय। किस